Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of education, and the subject for today, that is the general method of teaching, and the topics include, that is the inductive method, deductive method, scientific method, the problem solving approach, and advantages and limitation of the inquiry method. So the first topic, that is the inductive method. In this method of teaching, we generally go from specific example to general theory. It begins with the specific detail, concrete data, an example, and end with an abstract. Learners are more engaged within teaching learning process. This method gave us new knowledge. Students acquire first hand knowledge and information by actual observation. Here the learning become more interesting because the teachers start from the experience of student. It help in the development of higher order thinking and skill. Critical thinking and analysis are required to go toward generalization. It need much time to lead student to formulate generalization. Teacher goes to ask right question, organize, answer, and comment to pave the way to the derivation of generalization and principle. मतलब ये कि इंडक्टिव अप्रोच में हम इंडक्शन करते हैं. इंडक्शन ये है कि हम मखसूस या स्पेसिफिक चीज़ या एग्जाम्पल या कंक्रीट जिसका वजूद हो उससे शुरू करके उस चीज़ की तरफ चले जाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो, मुजर्रद हो, ख्याली हो, या एक थ्योरी नज़रिया हो या डिफिनीशन हो. तो मिसालों से शुरू करके डिफिनीशन पे ख़त्म करना, मिसालों से शुरू करके नज़रिए थ्योरी पे ख़त्म करना. दिस इज़ द मेथड इन विच वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी ख़ास से आम की तरफ हम चलते हैं और इसको हम इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं. अब इंडक्टिव मेथड जो है, फॉर एग्जांपल इसमें हम एक लेते हैं कि टीचर जो है क्लास में आता है और वो कहते हैं कि टुडे वी विल डिस्कस about the noun. So before announcing the topic, he asks the student, what is this? This is marker, that is chair, what is that? That is fan. We live in Mardan, we live in Peshawar, we live in Pakistan. Who is the founder of Pakistan? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So who is our national poet? Allama Muhammad Iqbal. So dear student, all these are names and we call it noun. So then we come toward the definition that all the naming word is known as noun. But here we have started from the example. So now advantages of inductive method. The learner are more engaged in teacher learning process. The learner formulate the generalization or rule. Learning become more interesting at the outset because teacher begin with the experience of the student. Teacher begin with what they know according to the need of the student, and concept clearance is very easy in this method. मतलब ये है कि ये तरीक़ाकार इसलिए इसके एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट की नीड के मुताबिक होता है, कंसेप्ट क्लियरेंस इसमें होता है, क्रिएटिविटी होती है, इसमें ज़्यादा जो है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, लर्निंग जो है वो ड्यूरेबल होता है यानी फ़ायदार होता है. स्टूडेंट आर मोटिवेटेड वेरी इजीली, आसानी से वो मुतहरिक हो जाते हैं लर्निंग के लिए. टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन इज़ मोर एंड एक्टिव. टीचर स्टूडेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा फ़ाल होता है और नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कम्प्लेक्स रूल आर फॉलोड विच इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट साइकोलॉजी. स्टूडेंट या तालिब इल्म के नफ्सियात के मुताबिक, मतलब है कि जो हम जानते हैं उससे चल कर स्टार्ट लेकर उस तरफ चलते हैं जो हम नहीं जानते, और सिंपल से यानी आसान से मुश्किल की तरफ हम इसमें जाते हैं. इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है. अब डिसएडवांटेज इसमें ये है कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, एंड इट इज़ ए स्लो प्रोसेस ऑफ टीचिंग. स्लो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है. मेजॉरिटी टीचर है नो स्किल ऑफ इंडक्टिव मेथोडोलॉजी एंड टीचर आर अनएबल टू take help from the example activities in an easy way related to our daily life. इन डेली लाइफ से जो हमारे
लिविंग एग्जाम्पल है, उसका सहारा बहुत कम लेते हैं इसमें टीचर। अब डिडक्टिव मेथड इसके अपोजिट है, इसमें हम वी प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू specific. This is also one of the inquiry method of teaching. In this method we go from journal to specific, from theory principle or journal thing definition etc. Are teaching to the student and then explain with example is explanation with example is followed. The teacher gives lecture or present the theory and principle in his own style with proper explanation and at the last give example. For example, when a teacher teach noun in the class through deductive method, he come to the class and start from definition that dear student, today we will discuss about noun. Noun is the name of a person, thing or place. For example, girl, boy, Akram, Peshawar, Qadi-Azam, chair, table, etc. So it is the teacher dominated approach of teaching. It begin with the abstract rule, generalization, principle and end with the specific example and concrete detail. It cover a wide scope of subject matter. In this method, learning is passive process. The learner do not take part in the generation of conclusion and generalization. Drill exercise and practice comes after the explanation of the principle. मतलब ये कि ये डिडक्टिव मेथड में हम आम से ख़ास की तरफ चलते हैं। पहले एक आम डिफिनीशन, एक आम थ्योरी, एक आम उसूल जो है उसको बयान करते हैं और उसके बाद उसकी मिसालें पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने टीचर नाउन के बारे में पढ़ा था, तो कहता है कि नाउन या इसम क्या है, तो वो कहता है कि किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं या नाउन कहते हैं और उसके बाद वो मिसालें देते, फॉर एग्जांपल गर्ल्स, बॉय, अकरम, पेशावर. So this is the deductive method. Example of sentence: teacher define all animals with backbone are classified as vertebrate. कि जितने भी एनिमल है जिसके में रीढ़ की हड्डी हो उसको हम कहते हैं वर्टेब्रेट्स. देन टीचर गिव एग्जांपल. फिर टीचर जो इससे मिसालें देते हैं, डॉग इज वर्टेब्रेट बिकॉज इट पोजेस बैकबोन. Cat, frog and cow are vertebrate, they possess a backbone. So this is the deductive method. Now advantages of deductive method: this method of teaching cover a lot of subject matter. इस तरीके से हम ज़्यादा हम नफ्स मज़मून पर उसको कवर कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं. टीचर रिमेन एक्टिव एंड प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन इन ए वेरी लेस टाइम. इसमें टीचर फ़ाल रहता है और कम वक्त में ज़्यादा मालूमात देता है. नो कंजम्पशन ऑफ टाइम इन दिस मेथड. इसमें वक्त का ज़िया नहीं होता है. एंड इट इज़ ए क्विक प्रोसेस ऑफ टीचिंग. और ये टीचिंग का एक बहुत क्विक यानी तेज़ तरीन मरहला है. डिसएडवांटेज इज लेस इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर. स्टूडेंट इसमें कम इन्वॉल्व होते हैं. लर्नर डू नॉट टेक पार्ट इन द जनरेशन ऑफ कंक्लूजन. कंक्लूजन या जर्नलाइजेशन के फार्मूलेशन में लर्नर जो है वो हिस्सा नहीं लेते. टीचिंग एंड लर्निंग इज़ नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट. चूँकि यहाँ पर एक ख्याली चीज़ या डिफिनीशन से बात शुरू होती है और मिसालें बाद में दी जाती है, तो ये इसमें वो इंटरेस्ट जो है वो कम होता है. देयर इज़ लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ में बहुत कम होते हैं. एंड स्ट्रेस ऑन द रोड लर्निंग. और ये रट्टे पर बहुत ज़्यादा जोर देता है. Scientific method: the word science has been derived from the Latin word scientia, which mean to know. साइंस जो है ये लेटिन लातीनी ज़ुबान के साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है जानना. सो साइंस इज़ ए स्टेप वाइज अप्रोच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट. अब साइंस जो है ये एक स्टेप वाइज अप्रोच है, सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है, तरतीबवार, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात से शुरू करते हैं, हाइपोथेसिस फिर उसके बुनियाद पर मफरूज़े पेश करते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट और फिर तजर्बात जो है कराते हैं. Therefore, we can say that scientific method is a systematic approach toward the solution of a problem. किसी मसले के हल की तरफ साइंसी तरीक़ाकार जो है ये एक तरतीबवार मरहला है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस साइंटिस्ट यूज टू आंसर क्वेश्चन. अब तरतीबवार जो स्टेप वाइज अप्रोच है ये साइंसदान इस्तेमाल करते हैं किसी मसले के हल के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए.
एंड सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। और इस तरीके से जब हम मसले हल करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड या साइंसी तरीक़ाकार। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इज आउटलाइंड बाय स्टेप्स। These steps are collectively called the scientific method. The steps are number first observation मुशाहिदात। जब हम किसी मसले को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो उस देखने से अब जो 5 खवास है या 5 हिस्से हैं, 5 सेंसेस है, उसके ज़रिए हमारे जहन में कुछ मालूमात आ जाते हैं। दिस इज़ वी कॉल्ड observation. And then we problem question. The question arises on the basis of these observation in our mind. And on the basis of these questions then we find out the solution. The tentative solution for a problem is known as hypothesis. यानी फ़र्ज़ी जो हल हम या जवाब तलाश करते हैं किसी मसले के लिए, उसको हम मफरूज़ा या हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है और उसके बाद रिज़ल्ट एंड कंक्लूजन होता है। तो दिस इज़ द 6 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथडोलॉजी कि जिसके ज़रिए हम मसले का हल तलाश करते हैं। Observation mean to keep an eye on something or any phenomena or group of phenomena while using our senses. These observation must be on a scientific basis which must be detectable and measurable. Number 2, problem question. This is the second step in which a question or problem or gap arises after observation that explain the phenomena. The cause and relationship of the problem with other phenomena is determined through comparison. Number 3, hypothesis. A tentative statement for the solution of a problem is called hypothesis, and after selecting a problem, a supposed solution is made for the problem. Experiment. Develop and follow a procedure, include a detailed material list and data. The outcome must be measurable, quantifiable. मतलब है कि जो हाइपोथेसिस हम डेवलप करते हैं उसके बाद पर हम डिडक्शन करते हैं, उससे और डेटा कलेक्शन करते हैं और उस डेटा कलेक्शन मालूमात जमा करने के बाद हम उस पर तजर्बा करते हैं। रिजल्ट, मॉडिफाई द प्रोसीजर इफ नीडेड। अगर तरीक़ाकार में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम उसमें को चेंज करते हैं। कन्फर्म द रिज़ल्ट बाय रीटेस्टिंग। रिज़ल्ट को दोबारा कई बार जो है रीटेस्ट करते हैं, तजुर्बा करते हैं। इंक्लूड टेबल, ग्राफ्स एंड फोटोग्राफ। इसमें हम टेबल, ग्राफ्स और तस्वीर जो है फिर शामिल करते हैं अगर ज़रूरत हो। कंक्लूजन, इंक्लूड ए स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। इसमें लास्ट में हम एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि हाइपोथेसिस हमने पहले से फार्मूलेट किए होते हैं, उसको या एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर स्टडी। फर्दर मज़ीद जो लोग स्टडी करना चाहते हैं इस पर हम उसके लिए रिकमेंडेशन हम देते हैं। द पॉसिबल इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर में पॉसिबल इम्प्रूवमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट स्किल सिस्टमेटिकली। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ये एक काबिलियत है, ये एक महारत है टू आइडेंटिफाई कि हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको सॉल्व करें बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट स्किल सिस्टमेटिकली। हम अपने स्किल को, हुनर को स्टेप बाय स्टेप जो है मुनज़्ज़म तरीके से परफॉर्म करने से। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ए प्रोसेस ongoing activity in which we take what we know to discover and what we don't know. प्रॉब्लम सॉल्विंग अब जो है ये एक मरहला है, ongoing एक्टिविटी है जिसमें हम के इख्तियार करते कि क्या हम क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ हम नहीं जानते। It involves overcoming obstacle by generating hypothesis। और इसमें फिर मतलब है कि हम हाइपोथेसिस जो है डेवलप होते हैं, टेस्टिंग दोज प्रेडिक्शन, फिर उस पोशन को या हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं एंड अराइविंग एट द सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन। और एक मुतमईन हल के लिए हल तक हम पहुंच जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में भी वही साइंटिफिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व 3 बेसिक फंक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में या हल मसला तरीका में 3 बेसिक फंक्शन है। इसमें सीकिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात तलाश करना।
जनरेटिंग न्यू नॉलेज, न्यू इल्म की तलाश करना और उसको बनाना, एंड मेकिंग डिसीजन, और फिर जो है फैसला साजी करना। स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अब एक मसले को हल करने के लिए कौन कौन से स्टेप हम, सो द फर्स्ट वन दैट देयर आर 5 स्टेप्स। द फर्स्ट वन दैट इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स रिलेटेड गोल्स। इनकरेज स्टूडेंट टू फ्रेम ए प्रॉब्लम इन देयर ओन वर्ड्स। मतलब है कि सबसे अहम मसला ये है कि सबसे पहले कि मसला क्या है उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, डिस्क्राइब एनी बैरियर। अब उसमें मसले के हल के रास्ते में जो रुकावट है फिर हम पहले से सोच लेते हैं। स्टूडेंट नीड टू बी अवेयर ऑफ एनी बैरियर्स आर कंस्ट्रेंट दैट मे बी preventing them from achieving their goal. In short, what is creating the problem? Encouraging student to verbalize these obstacles is always an important step. मतलब स्टूडेंट को इनकरेज करना, उसको हौसला अफजाई करना ताकि वो उसके रास्ते में जो मुमकिन हर्डल्स है या ऑब्स्टिकल्स है वो आने वाले हैं, तो वो सबसे पहले उसको रियलाइज़ करे, उसको समझें। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाइंग वेरियस सोल्यूशन। अब मसले के हल के लिए मुख्तलिफ सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना। आफ्टर द नेचर एंड पैरामीटर ऑफ ए प्रॉब्लम आर अंडरस्टूड, स्टूडेंट विल नीड टू सिलेक्ट वन आर मोर एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मसले के पैरामीटर को समझने के बाद उस स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने लिए इंतखाब करे मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमलियों का जो कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसकी मदद कर सकते हैं। स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे मे हैव मेनी स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू देम एंड दैट नो सिंगल स्ट्रेटजी विल वर्क फॉर ऑल प्रॉब्लम। मतलब है कि स्टूडेंट पहले से वो जानता है कि वहाँ उसके पास कई हिकमत अमलियाँ हैं, कई तरीक़ाकार है और सिर्फ एक तरीके से कई मसाइल हल नहीं हो सकते। हियर आर सम सब प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबिलिटीज। मसले हल के लिए मज़ीद ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। क्रिएट विजुअल इमेज। अब मेनी प्रॉब्लम सॉल्वर्स फाइंड इट यूजफुल टू क्रिएट माइंड पिक्चर। अपने जहन में एक तस्वीर जो है पिक्चर तस्वीर तैयार करते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबिलिटीज़। मुख्तलिफ किस्म के जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉसिबिलिटीज़। क्रिएट विजुअल इमेज। मेनी प्रॉब्लम सॉल्वर फाइंड इट यूजफुल टू क्रिएट माइंड पिक्चर ऑफ ए प्रॉब्लम एंड इट्स पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रायर टू वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। मेंटल इमेजिंग allow the problem solver to map out many dimensions of a problem and see it clearly. This time give student opportunities to engage in some trial and error approaches to problem solving. It should be understood however that this is not a singular approach to problem solving but rather an attempt to gather some preliminary data. मतलब एक स्टूडेंट के लिए कुछ टाइम जो है वो ज़रूरी है कि वो ख़ुद जो है अपनी तरफ से ट्रायल एंड एरर बेस पर कोशिश करे और मसले को समझे और उसके लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस जो है वो तलाश करे। नंबर 3, क्रिएट ए टेबल। ए टेबल इज़ एन ऑर्डरली arrangement of data. When students have opportunities to design and create table of information, they begin to understand that they can group and organize most data relative to a problem. Tabulization करना डेटा की। use manipulative by moving object around on a table disk, student can develop a pattern and organize element of a problem into recognizable and visually satisfying component. मतलब कि प्रॉब्लम जो है हम उसके गिर्द घूमते हैं उससे, तो स्टूडेंट जो है अपनी तरीके से एक पैटर्न एक तरीक़ाकार जो है वो डेवलप करता है ताकि उसको प्रॉब्लम के जो एलिमेंट्स है वो उसको समझ सकें। वर्क बैकवर्ड इट्स फ्रीक्वेंटली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट टू टेक द डेटा presented at the end of a problem and use a series of
computation to arrive at the data presented at the beginning of the problem. मतलब है कि एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम जो उसने जो डेटा लिया है उससे लेकर दोबारा उस डेटा की तरफ चले जाएं जो उन्होंने पहले से स्टार्ट किया था. लुक फॉर ए पैटर्न. Looking for a pattern is an important problem solving strategy because many problems are similar and fall into predictable pattern. A pattern by definition is a regular systematic repetition and may be numerical, visual or behavioral. Pattern क्या होता है? एक तरीकाकार होता है, एक जो स्टेप जो है बार बार या रिपीटिशन जो है एक मरहले में होता है, तो ये कई मसाइल में हमें मदद दे सकते हैं. तो एक पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी होता है. क्रिएट ए सिस्टमेटिक लिस्ट. रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन लिस्ट फॉर्म इज ए प्रोसेस used quite frequently to give out a plan of attack for defining and solving problem. Encourage students to record their ideas in lists to determine regularities, pattern or similarities between problem element. सो लिस्ट जो है हर एक चीज़ का सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नंबर 4, ट्राई आउट ए सॉल्यूशन. व्हेन वर्किंग थ्रू ए स्ट्रेटजी और कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी it will be important for student to. Number 1, keep accurate and up-to-date record of their thoughts, proceeding and procedures. Recording the data collected, the prediction made and strategies used is an important part of the problem solving process. सबसे पहले solution के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने डेटा को रिकॉर्ड करें. Try to work through a selected strategy or combination of strategies until it becomes evident that it's not working. It needs to be modified or it is yielding inappropriate data. As students become more proficient problem solver, they should feel comfortable rejecting potential strategies at any time during their quest for solution. मतलब है कि हम कोई स्ट्रेटजी जो है अपना सकते हैं स्टूडेंट, और इस कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज़ में इसको उस वक्त तक फॉलो करना है जब तक ये साबित ना हो जाए कि हमें इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या ये डेटा जो है या ये प्रोसीजर जो है हमें सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा है. मॉनिटर विद ग्रेट केयर द स्टेप्स अंडरटेकन एज पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन. यहाँ पर केयर जो है एहतियात बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो इट माइट बी ए नेचुरल टेंडेंसी फॉर स्टूडेंट टू रश, यानी जल्दी करना ये हर एक इंसान की या स्टूडेंट की फितरत में है. थ्रू ए स्ट्रेटजी टू अराइव ए क्विक आंसर, इनकरेज देम टू केयरफुली असेस एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. मतलब है कि हर एक चीज़ को असेसमेंट जो है, मॉनिटरिंग जो है ऑफ द प्रोसेस, ये इसमें केयरफुल या केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नंबर 4, फील कंफर्टेबल पुटिंग ए प्रॉब्लम aside for a period of time and tackling it at a later time. For example, scientists rarely come up with a solution the first time they approach a problem. Students should also feel comfortable letting a problem rest for a while and returning to it later. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बस टाइम जो है कि कोई मसला है या साइंटिस्ट कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते स्टूडेंट करते तो मतलब है कि एकदम बस हमें विद इन नो टाइम रिजल्ट आ जाए. इसमें प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं, तो इसमें कुछ वक्फा लेना ज़रूरी है और दोबारा अपने जो काम है उस पर आना चाहिए. नंबर 5, इवेल्युएट द रिजल्ट. It's vitally important that students have multiple opportunities to assess their own problem solving skill and the solution they generate from using those skills. Frequently, students are overly dependent upon teacher to evaluate their performance in the classroom. The process of self-assessment is not easy. However, it involves risk-taking, self-assurance, and a certain level of independence. But it can be effectively promoted by asking student questions such as, how do you feel about your progress so far? Are you satisfied with the result you obtained? And why do you believe this is an appropriate response to the problem? मतलब ये कि खुद जो है अपना आपका जो है इवैल्यूएशन करना, सेल्फ असेसमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
अपने जो प्रोसीजर है, स्टेप्स है, उस पर गौर करना और जो हाइपोथेसिस डेवलप किए है उस पर सोचना क्या है, इससे ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. Advantages and limitation of inquiry method. Advantage: student motivation, help develop इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली. मतलब इसकी इंक्वायरी मेथड की एडवांटेजेस ये है कि इसमें स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, इंफॉर्मेशन इसमें एक्यूरेट होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होती है, रिजल्ट इन बेटर लॉन्ग टर्म रिटेंशन यानी लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हेल्प डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, help students become better learners and help prepare them to be lifelong learners. Encourage self-direction, reinforces physical, emotional and cognitive growth. अब जिसमें जिस्मानी है या तबी, जज्बाती और ज़हनी नशुमा जो है इसमें वो इनकरेज होती है, वो ज़्यादा डेवलप होती है. Encourages development of interpersonal and team skill, can give students the opportunity to teach and learn from each other. Many may engage students who do not function well in a more traditional learning environment, validate the knowledge and experiences of students including those from minorities and disadvantaged group, can be adapted for any group. Speed and content can be adapted to suit individual learning need of student. Limitation: require expertise on the part of the teacher, time consuming, and all the student not proceed with the same speed. So thanks a lot. Now